I welcome you all in the next video tutorial of Pharmacognosy and Phytochemistry 1, that is BP405T. So dear students, in this video tutorial we are going to cover yet another important topic of unit number 2, yes, plant hormones and their applications. So without wasting any time further, let's start the plant hormone and their applications. So if we talk about the plant growth regulators, जो plant की growth को regulate करें, they are also known as plant growth hormones. Like auxins, gibberellins, cytokines, cytokinins, ethylene, and abscisic acid. So these plant growth regulators are the organic compounds other than the nutrients which affect the morphological structure or the physiological processes of the plant in low concentration. So they are used in very required by the plant in very low concentrations. So these are the organic compounds other than the nutrients. In nutrients के अलावा जो organic compounds है which are required for the proper morphological and the physiological processes in the plant in a very low concentration. And phytohormones, so the plant hormones, so they are also known as the phytohormones or the plant hormones, and these are naturally occurring growth regulators which in the low concentration control the physiological processes in the plant. So they are present in the plant, they are producing by the plant itself, but in the very minute concentration, and they are responsible for different physiological activities or different physiological processes in the plant. जो plant growth regulators है, they are required by the plant in the low concentration, plant इसको खुद produce कर रहा है, and they are majority of different kinds. For example, auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acids, and ethylene. So these we have to do 5 categories of the plant growth regulator: auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acid, and ethylene. और अगर जनरल बोला जाए, in general we can say that these plant growth regulator or substances they can regulate the cell enlargement, plant के cell enlargement के लिए division, cell differentiation, organogenesis, leaf senescence and dormancy. ये सारे terms हम एक एक करके करेंगे. And they are also employed in the seed treatment to achieve earlier growth. अब ये तो plant growth hormones है, plant के अंदर produce होंगे, लेकिन हमने humans ने क्या किया, हमने इन हार्मोन्स को लैब में सिंथेसाइज कर लिया और अब हम इन हार्मोन्स को यूज कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ को जल्दी करवाने के लिए, जो कि एक कंट्रोल्ड कंडीशन में तो ठीक है. अगर इनका अब्यूज होना शुरू हो जाएगा, यूज तो ठीक है, आप ऑक्सिन यूज कर लिए, आप रूट हार्मोन, ऑक्सिन को रूट हार्मोन बोलते हैं, रूट की ग्रोथ के लिए ऑक्सिन यूज कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर उसका अब्यूज शुरू हो जाए देन इट विल बी अ टॉपिक ऑफ द ग्रेट कंसर्न. So in general हम बोल सकते हैं plant growth regulator, they regulate the cell enlargement, cell division, cell differentiation, organogenesis, leaf senescence and dormancy. अब देखते हैं एक एक करके what are the different roles of these plant growth regulator. The first one is the auxins. Just see the structure first of all. There are different derivatives of auxins like IAA, IBA, NOA. हम ये करेंगे डिटेल में अभी, तो एक बार स्टार्ट करते हैं auxins है क्या. ऑक्सिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सिन, तो ये वर्ड है ऑक्सिन डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से. ऑक्सिन इसका मतलब है टू ग्रो, एंड इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. याद रखना है आपने, ऑक्सिन फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेटेड फ्रॉम कहां से, ह्यूमन यूरिन से, एंड इट इज अप्लाइड टू दी IAA क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. तो केमिकल नेचर है ऑक्सिन की IAA, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एंड इट्स synthetic and semi-synthetic derivatives are nowadays available. So yes, we know this IAA, that is indole 3 acetic acid, is an auxin that occurs in the plant naturally. ये plant के अंदर naturally occur होता है. They are either natural auxins that are produced by the plant themselves or the synthetic auxin, जैसा कि हमने डिस्कस किया. We have also synthesized the hormones in our laboratory now, which have a same action as that of the natural auxins. तो कौन कौन से सिंथेटिक ऑक्सिन्स, जस्ट सी हियर, ये है सिंथेटिक ऑक्सिन, जैसे इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, दैट इज IBA, देन NOA, NOA की फुल फॉर्म क्या है, 2 नेफ्थाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड, एंड NAA अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, NAD 1 नेफ्थाइल एसिटामाइड, वेरी वेरी कॉमन, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो phenoxyacetic acid. These are the synthetic. अब नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन से हैं, लाइक इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, ओके,
4-chloroindole 3-acetic acid and phenyl acetic acid. So these are the example of the natural oxanes. See the structure. अब ये बताइए कौन सा न्यूक्लियस है ये वाला? इंडोल न्यूक्लियस. ओके, indole nucleus. Just see here, indole. Now let's see the functions. The auxins are involved in different growth processes in the plants like internode elongation. अब what is node and internode? कोई भी स्टेम है, सपोज करिए किसी प्लांट की स्टेम है, तना है जिसको हम स्टेम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे नोड और इंटरनोड आपको पता होना चाहिए. ये पार्ट इस पार्ट से जहां से ये दूसरी स्टेम निकल रही है, बेसिकली जहां पे बड होगा, बड से ग्रोथ होगी किसी भी लीफ की या किसी भी स्टेम पार्ट की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे नोड. यहाँ दूसरा नोड आ गया. ओके, और इनके बीच का डिफरेंस आ गया इंटरनोड. इससे समझिए ये आ गया नोड जहां से आपका लीफ ये निकल रहा है थ्रू बड, और यहाँ पे आ गया दूसरा नोड. ओके, तो इनके बीच के डिफरेंस को क्या बोल दिया हमने? इंटरनोड. तो ऑक्सिन का एक फंक्शन इंपॉर्टेंट ये भी है दैट कॉज द इंटरनोड इलोंगेशन. लीफ ग्रोथ करता है, इनिशिएशन ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू. वैस्कुलर टिश्यू आपको पता ही है प्लांट में क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, एंड द कैम्बियम एक्टिविटी. कैम्बियम भी हमने देखा था, कैम्बियल एक्टिविटी करता है. फ्रूट सेटिंग इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन. अगर एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन का तो फ्रूट सेटिंग करता है. एज वेल एज एपिकल डोमिनेंस. तो आपने याद रखना है A फॉर ऑक्सिन, A फॉर एपिकल डोमिनेंस. अब ये एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है? इन बॉटनी वी कैन से दैट एपिकल डोमिनेंस इज अ फिनोमिना वेयर बाय द मेन और द सेंट्रल स्टेम ऑफ द प्लांट इज डोमिनेंट ओवर अदर. मतलब प्लांट की ग्रोथ ज्यादा कहां पे होगी? एपेक्स में. Other function of auxins are the root initiation also. So various auxins like IA to cut end of the stem and stimulate the rate of formation and number of the root initiation. Just see the photograph. कई फॉर्मुलेशंस आती है मार्केट में, कई प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, जैसे फास्ट रूट. तो इस फास्ट रूट में या टेक रूट जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल, इसमें देखिए क्या डला हुआ है? इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, मतलब ऑक्सिन्स. तो रूट की ग्रोथ के लिए भी हम ऐसा रूटिंग हार्मोन ऑक्सिन्स को यूज करते हैं. देन इंपॉर्टेंट पार्ट सेल इलोंगेशन में, यस हमने कर लिया. इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग के लिए. देन ऑक्सिन आल्सो इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एब्सिशन. By spraying of the auxin to the leaf and fruits can be prevent their premature falling. तो पत्तों को झड़ने से बचाने के लिए भी हम ऑक्सिन का यूज करते हैं. तो अब मतलब देखिए एब्सिशन और सेनेसेंस का मतलब क्या है? अब ये एब्सिशन का मतलब क्या है? शेडिंग ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अगर हम लीफ, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में से डिफरेंट पत्तों का झड़ना, फ्रूट का गिरना, फ्लावर और सीड का गिरना, मतलब उनका शेड हो जाना. Natural detachment of the part of the plant, typically dead leaf and the ripe fruit. Suppose किसी पेड़ में पक्का फ्रूट पक गया या लीफ पूरी तरह से ड्राइड हो गए तो अपने आप गिर जाएंगे. That is known as the abscission, leaf fall. What is senescence? The condition of the process of deterioration with age. तो जैसे जैसे प्लांट की एज हो जाएगी, नेचुरल सी बात है, वैसे वैसे उसकी ग्रोथ भी कम होगी और लॉस ऑफ द सेल पावर ऑफ डिवीजन भी कम होगी. That is known as senescence. So with the spraying of auxin to leaf and fruits, it can be prevent the premature falling. Premature falling से ये पत्तों को झड़ने से प्लांट में से बचाएगा. और it is also used as a weedicide because some synthetics are now used as a herbicide and used to kill the weeds also. So second one is the cytokinins. So cytokines were discovered as kinetin. ये kinetin के फॉर्म में discovered हुआ from the autoclaved herring sperm DNA. What is this herring sperm? DNA which is purified from the sperm of herring. तो herring क्या है? ये एक फिश की कैटेगरी में आता है. तो सबसे पहले साइटोकिनिन इसके स्पर्म में से आइसोलेट किया गया. तो साइटोकिनिन्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक. जैसे ऑक्सिन्स थे, नेचुरल के एग्जांपल आ गए इसमें जेटिन, और सिंथेटिक का एग्जांपल है काइनेटिन. जस्ट सी दिस इज द जेटिन स्ट्रक्चर. आपको स्ट्रक्चर भी याद करने हैं. और दिस इज द काइनेटिन स्ट्रक्चर. वेरी सिंपल. Again, indole nucleus is there. Let's see some of the functions. Zetin has effect on cell division. अब cytokinin का मतलब क्या है? Cyto means cell, kinesis मतलब division. तो ये cell division करेगा. Zetin has effect on cell division, leaf senescence, and the synthetic cytokinins are used in promoting the lateral bud formation and inhibition of senescence. Look at this. The applications are breaking the dormancy. अब dormancy क्या है? Seed dormancy is defined as a state in which seeds are prevented from germinating even under
environmental condition normally favorable for their germination. तो सीड डोरमेंट रहेगा, मतलब सीड जर्मिनेट नहीं होगा कुछ देर के लिए, वो एक डोरमेंट अवस्था में चला जाएगा. डोरमेंट का मतलब देखिए निष्क्रिय, तो वो निष्क्रिय रहेगा कुछ समय तक. तो उसको ब्रेक करने के लिए भी हम साइटोकाइनेंस को यूज करते हैं एंड दिस हेल्प इन द जर्मिनेशन. सेक्स एक्सप्रेशन दैट इट प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल फ्लावर्स इन सर्टेन प्लांट्स. तो भी क्या यूज करेंगे? साइटोकाइनेंस. साइटोकाइन प्रमोट सेल डिवीजन. ओके, बट एक कंडीशन है, however, only in the presence of oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करेगा. A balance of the two hormones determine the root and the growth system. मतलब ऑक्सीजन इस टू साइटोकाइनिन का जो रेशो है वो ही डिटरमाइन करेगा कि उसकी रूट ग्रोथ होगी कि शूट ग्रोथ होगी. और इस चीज को हम प्लांट टिश्यू कल्चर में भी डिटेल में करेंगे, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर में भी तो हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को यूज करना पड़ेगा प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए. तो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का कंसेप्ट, जो इनकी रेशो की बात हो रही है, उसको हम डिटेल में करेंगे इन द पीटीसी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, डिले इन द सेनेसेंस. ये सेनेसेंस में भी डिले करेगा. अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, इट हेल्प टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस. को ओवरकम करने के लिए भी हम साइटोकाइनिन्स को यूज करते हैं. अगर बहुत ज्यादा प्लांट में एपिकल डोमिनेंस हो रही है, सपोज उसकी एपेक्स में ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, देन उसको कंट्रोल करने के लिए भी, हम उसको ओवरकम करने के लिए वी कैन यूज साइटोकाइनिन. And kinetin is reported to play the role in the nucleic acid metabolism and the protein synthesis. तो ये recent report है, इसमें kinetin का रोल पाया गया है nucleic acid metabolism में प्लांट के और protein synthesis में. So next is the gibberellins. तो look at the structure of gibberellic acid. तो gibberellins के बारे में पढ़ते हैं अब. Gibberellins are the class of the endogenous plant growth regulators, and at present over 50 gibberellins are known, and about 40 of these occur in the green plants, while other are present in the fungi also. तो सबसे पहली बात करें कि सबसे पहले जिब्रेलिन्स कहां पे आइसोलेट किए, किसने किए, तो आपने याद रखना है, a scientist named Kurosawa, a Japanese physiologist, is credited with the discovery of the gibberellins. जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी के लिए एक जापानीज साइंटिस्ट है कुरोसावा, सी इज फोटोग्राफ कुरोसावा, जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया फ्रॉम द फंगस. एक फंगस थी जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिसका पहले नाम था फुसेरियम हिट्रोस्पर्मम, और ये फंगस किस पे ग्रो की थी? राइस प्लांट पे. तो कुछ इस तरह से ये फंगस थी जो कि राइस प्लांट पे ग्रो की थी. इसमें से कुरोसावा ने जिब्रेलिन्स सबसे पहले आइसोलेट किए. तो जिब्रेलिन्स बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यूज लाइक रूट, शूट, बर्ड्स, लीफ एंड द फ्लोरल एपिसेस as well as the root nodules, fruits and callus. And the commercial formulation of gibberellins are used for promoting the vegetative and the fruit growth, breaking the dormancy, flower initiation and induction of the parthenocarpy, मतलब seedless varieties of the fruit. See the applications: breaking of dormancy, okay, parthenocarpy, development of the parthenocarpic fruits. In simple language, we can say that parthenocarpy is the natural artificial induced production of fruit without a fertilization of the ovules, जिसकी वजह से होगा क्या, बेसिकली seedless fruit प्रोड्यूस होंगे. Next is the use of the gibberellins in the lower dose reported that increased yield of the digitalis glycoside per shoot. अगर digitalis प्लांट में हम जिब्रेलिक एसिड यूज करते हैं तो यह पाया गया है कि लोअर डोज में इट कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ द digitalis glycosides. Next important function, delayed the ripening. The ripening of the citrus fruits can be delayed with the help of gibberellin. तो ripening को हम डिले कर सकते हैं, फ्रूट्स को पकने से हम थोड़े टाइम के लिए बचा सकते हैं, राइपन करने के लिए उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. तो ripening of the citrus fruit can be delayed with the help of gibberellins. It is also useful in the safe and long term duration of the fruits. तो फ्रूट्स के लिए भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, ताकि फ्रूट्स हमारे टिके रहे. सपोज आपने फ्रूट तोड़ दिया और आपने नॉर्थ इंडिया में फ्रूट तोड़ा है और साउथ इंडिया में आपको सप्लाई करना है, तो यस उस पे हम जिब्रेलिन्स यूज करते हैं ताकि वो पके ना और कुछ टाइम तक वो टिक जाए, ताकि वो अगर लंबे समय के लिए ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है फ्रूट हमारा तो वो खराब ना हो. तो उसके लिए हम जिब्रेलिन्स, वी आर यूजिंग जिब्रेलिन्स. नेक्स्ट, elongation of dwarf plant, very important. The gibberellins stimulate the elongation of the internodal cell also, and the plant can be made to grow to the normal size by the application of gibberellins. तो जिब्रेलिन्स की हेल्प से जो ड्वार्फ प्लांट है, छोटे प्लांट्स रह गए हैं, उनको भी हम इलोंगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन्स. नेक्स्ट इज द साइटोकाइनिन. ये हमने अभी कर लिया. सीधे में साइटोकाइन फॉर्मुलेशन अवेलेबल इन द मार्केट. दिस इज द जिब्रेलिक एसिड. एक और पॉइंट आपको जिब्रेलिक एसिड में याद रखना है कि बेसिकली ये GA1 वाला पॉइंट
जिब्रेलिन्स की जो आइसोलेट किया गया, दैट इज जिब्रेलिन ए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ द 6 जिब्रेलिन्स दैट इज आइडेंटिफाइड एज GA1 अप टू GA2, 3, 4, 7 एंड GA9, जिसमें से GA3 को हमने क्या कहा, जिब्रेलिक एसिड। आई एम रिपीटिंग अगेन, जिब्रेलिन्स ए जो आइसोलेट किया गया 1938 में, वो पाया गया वो जिब्रेलिन ए वो सिंगल कंपाउंड नहीं था, इट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ 6 जिब्रेलिन्स दैट इज रेफर्ड टू एज GA1, GA2, GA3, GA4, GA7 एंड GA9, whereas GA3 को हमने क्या कहा, जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द GA3, ओके, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ GA7 एंड दिस इज द गिबेन स्केलेटन। इसके अंदर एक कॉमन न्यूक्लियस है जिसे हमने क्या कहा, गिबेन स्केलेटन, ये कॉमन न्यूक्लियस दैट इज द गिबेन स्केलेटन। इसके अंदर भी गिबेन स्केलेटन है, GA3 के अंदर भी और GA7 के अंदर भी गिबेन स्केलेटन रहेगा। नेक्स्ट इज द गैसियस हार्मोन। क्वेश्चन आता है व्हिच वन ऑफ द आर द एग्जांपल ऑफ द गैसियस हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, इसमें से गैसियस और वोलेटाइल नेचर का कौन सा है एग्जांपल, इथाइलिन। तो इथाइलिन इज अ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द वोलेटाइल गैस एंड हैव अ profound physiological effects. First of all, see the structure of ethylene, very simple. So mostly ethylene is present in the ripening fruits, flower, stems, roots, tubers, seed, etc. And very small quantities is present in the plants like 0.1 ppm क्या है, parts per million. अगर डिस्कवरी की बात करें थाइलिन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल Gain in 1935 found that a gas evolved from the ripe apples can also affect the ripening of the green apples, showed that it was ethylene gas which has a role in the ripening of the fruit. तो सबसे पहले 1935 में गेन द्वारा ये पाया गया कि गैस निकल रही थी पके हुए एप्पल्स में से, जिसका इफेक्ट उन्होंने ग्रीन एप्पल्स पे देखा, तो ये पाया गया कि इट वाज इथाइलिन गैस which has a role in the ripening। तो ये राइपनिंग करवाएगा, क्या इथाइलिन को यूज करते हैं फ्रूट की राइपनिंग करवाने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या है, एप्लीकेशन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, किसका, इथाइलिन का। जस्ट एक एग्जांपल देखिए इस फोटोग्राफ में, इसमें हमने इथाइलिन इंड्यूस नहीं किया, ये टमाटर का दे रखा है फोटोग्राफ, और जैसे ही इथाइलिन इंड्यूस किया ये फ्रूट पक गया। वैसे ही ज्यादातर हम बनानास में यूज करते हैं उनको पकाने के लिए, किसका, इथाइलिन गैस का। नेक्स्ट, इलोंगेशन ऑफ प्लांट में इसका रोल है एंड ऑफ कोर्स द इफेक्ट ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये पाया गया कि इथाइलिन एट लो कंसंट्रेशन हैज रिपोर्टेड टू इंक्रीज द सेनोसाइड कंसंट्रेशन द सेना लीफ। सेना एक प्लांट है, तो ये पाया गया है कि इथाइलिन को अगर लो कंसंट्रेशन में यूज करेंगे तो सेनासाइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ओके, ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी, इथाइलिन इज आल्सो यूज्ड टू ब्रेक द डोरमेंसी। नेक्स्ट इज योर एब्सिसिक एसिड। दिस इज द लास्ट plant growth hormone that we are going to cover is the abscisic acid. You can remember this structure also. Again a question आता है, which hormone is the plant growth inhibitor? Example आएगा abscisic acid. So the physiological activities in the plants like shedding of the different organs such as पत्तों का झड़ना, stem का गिरना, flowers और fruits का have led to the finding of the natural growth inhibitor, जिसकी वजह से हमें growth inhibitor के बारे में पता चला। A diffusible abscission accelerating substance was found by, सबसे पहले Osborne in 1955 में सेरिसेंट लीफ, जो पत्ते गिरने वाले हैं उसमें से हमें पता चला कि एब्सिसिक एसिड नाम का कोई सब्सटेंस हो सकता है। देन कार्स ने उसके बाद आइसोलेट किया गया सेवरल एक्सेलरेटिंग एब्सिशन एक्सेलरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम द कॉटन प्लांट, और जिसको उन्होंने नाम दिया एब्सिशन 1 एंड एब्सिशन 2। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एब्सिशन 2। ओके, तो ये कहां से आइसोलेट किया गया, कॉटन प्लांट में से। तो हम बोल सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड इज अ नेचुरली अकरिंग प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। एंड एब्सिसिक एसिड कंसंट्रेशन कब बढ़ती है, दीज कंसंट्रेशन आर फाउंड टू बी एनहांस्ड इन स्ट्रेस कंडीशंस। जब प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन में हो, लाइक मिनरल डेफिशिएंसी, इंजरी, ड्राउट और फ्लडिंग कंडीशन में, जब भी प्लांट को स्ट्रेस मिले तब एब्सिसिक एसिड का लेवल प्लांट्स में इंक्रीज हो सकता है। इसलिए इसको हम एज अ स्ट्रेस हार्मोन भी यूज करते हैं, एज अ स्ट्रेस हार्मोन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जब भी प्लांट को स्ट्रेस होगा किसी भी तरह का, तो ये प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होता है नेचुरली, दैट इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड। नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशंस। तो एब्सिसिक एसिड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल as a potential anti-transparent by closing of the stomata when applied to the leaf। तो ये अब ट्रांसपिरेशन क्या है, अब स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। सपोज अगर जैसे हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होगा,
अगर ड्राउट आ गया, मतलब प्लांट अगर बहुत ज्यादा फ्लडिंग कंडीशन आ गई, अगर बहुत ज्यादा पानी आ गया प्लांट में, तो उसके लीफ क्या करेंगे, पानी ज्यादा है तो लीफ ओपन हो जाएंगे ताकि ट्रांसपिरेशन हो जाए। उसी तरीके से अगर जब भी क्लोज करने की बात आएगी स्टोमेटा को, मतलब अगर आपने वाटर का लॉस कम करवाना है किस कंडीशन में, ड्राउट कंडीशन में, तब भी एब्सिसिक एसिड का रोल है उसको स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग करने में। तो एब्सिसिक एसिड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट बाय क्लोजिंग द स्टोमेटा व्हेन अप्लाइड टू द लीफ। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन देखिए एक बार, इट इज द प्रोसेस ऑफ द वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन। वाटर की इवेपोरेशन होगी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से, सच एज लीफ, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। सेकंड फंक्शन देखते हैं, it plays an important role in the seed development, maturation and dormancy. Next one, abscisic acid promotes the abscission of the leaf. Yes, very important, abscission fall करवाएगा leaf को, flowers and the fruit in plants. And it is also known as anti-gibberellins due to suppress the growth promoting effects of the gibberellins. तो gibberellins को suppress करने के लिए भी हम we are using the abscisic acid. Growth, plant growth inhibitor. It hastens the formation of abscission layer and senescence, मतलब ये लीफ फॉल करवाएगा। तो many studies have shown that abscisic acid promote leaf abscission and senescence. So this is the most important role of the abscisic acid. So I hope now it will give you a brief idea about the plant hormones and their application. तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में और उनके एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू लिया। In the last, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. And this video is intended for education purpose only. No commercialization is involved whatsoever. Thank you very much for your valuable time.